السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائیو محفل میں اپنے ذکر کے لیے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سننے کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے ہمارا چناؤ کیا۔ یہ اللہ کی ہم پر مہربانیاں ہیں، اس پر شکر ادا کریں۔ اور جب بھی ہم ایسی محفلوں میں جڑتے ہیں نا اللہ کے ذکر کے لیے، تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو بھی زندگی میں ٹینشنز چل رہی ہے، پریشانیاں چل رہی ہو، یا کوئی تکلیف ہو، یا جو بھی بے چینیاں ہو نا دل میں، وہ ایک دم سے چلی جاتی ہے۔ ہم جیسے ہی اللہ کے ذکر میں جڑ جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں نا، تو دل پر ایک سکینہ نازل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو آپ بھی اس نیت سے اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور دل پر ایک سکون نازل ہوتا ہے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی دعائیں دل ہی دل میں مانگا کیجئے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کہیں پہ جڑتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ خالص عبادت ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اپنی دعائیں مانگتے جائیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے کہ آج ہماری زندگی باقی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ کئی لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں، کچھ ہاسپٹلس میں ہیں، کچھ پریشانیوں میں مارے راستوں پر بھٹک رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سکون ہے، اس پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اللہ نے سکون کے ساتھ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دعا کیجیے کہ جو بھی جہاں بھی پریشانیوں میں ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام قرض داروں کی قرضداریاں دور ہو، آمین ثم آمین۔ اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ دل کی بیماری سے بھی نجات دلاتا ہے، کیونکہ ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہے، ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، محبت دے کے تڑپائے گئے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہوں کہ جو چھوٹا سا واقعہ نظر میں آتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ہے، وہ بہت لمبا اور وسیع نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سبق ملتا ہے کہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لوگوں نے بھی اس نام کو سنا ہوگا۔ یہ ایسے صحابی رسول ہے نا کہ اسلام جب نیا مطلب خفیہ طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا، کیونکہ علانیہ طور پہ جیسے ہی بتایا جاتا، لوگوں پر ظلم کیے جاتے، ستایا جاتا، لوگوں کو، غلاموں کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا، پیٹا جاتا، تو اس وقت یہ خفیہ طور پہ جو دعوت شروع تھی اس میں ایمان لانے والے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی تھی اس وقت بھی ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اب جب دوسری ہجرت جب مدینہ میں ہوئی نا، تو وہاں بھی لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اطاعت کرنے کے لیے، یہاں جو مکہ والے ستا رہے تھے نا، تو اپنا سارا گھر، سارا مال و دولت، سارا جو کچھ دکان تھے، باغات تھے، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، یہ اللہ کی فرما برداری کے لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرتے وقت کوئی اور نہ ستائے، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور نہ روکے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں اتنا ستایا گیا ہے، تو ہمارا یہاں کیا کام؟ ایسے بھی لوگ سوچ کر نکل گئے تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت عبداللہ بن جحش کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بھی بڑا عالیشان مکے میں گھر تھا، بڑا ہی خوبصورت گھر تھا، بڑی فیملی تھی۔ یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ اب جب وہ وہاں پہ گئے نا، تو
मक्के के जो सरदार थे ना, अबू जहल जैसे, फिर उत्बा बिन रबीआ, ये मुशरिक सरदार थे मक्का के। ये लोग क्या करते थे कि जब लोग निकल जाते थे ना तो रोज मक्का का एक चक्कर काटते, गली बाजारों का, मोहल्ले का, कि पता तो चले कि कौन कौन घर छोड़ के चला गया है, कौन कौन मक्का से हिजरत करके चला गया है। मतलब ये लोगों को वो भी एक फिक्र होती कि कौन गया है, कितना माल छोड़कर गया है, किसका घर खाली है, कहाँ कब्जा जमाना है। तो अबू जहल भी फेरे लगाता, चक्कर लगाता। तो जब देखा अबू जहल ने और उत्बा बिन रबिया ने कि ये क्या, एक घर बड़ा ही आलीशान है, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश का, हवाएं आजू बाजू से आ रही है, खिड़कियां और दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मतलब घर खाली होने की वजह से कैसा वीरान हो जाता है, तो यहाँ से हवा से खिड़कियां पटक रही है, वहां से खिड़कियां पटक रही है, गर्दो गुबार अटा पड़ा है, यहाँ से मिट्टी उड़ रही है, वहां से मिट्टी उड़ रही है, और पूरा घर वीरान सुनसान, ऐसा आलीशान मकान और ऐसा सुनसान। अबू जहल ने सोचा कि क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन जहश भी हिजरत करके चले गए, अल्लाह अकबर। वो कहने लगा कि इन लोगों को क्या हो गया है, अपने आलीशान घर को वीरान करके चले गए, इन्हें अपने इतने खूबसूरत मकानों की भी परवाह नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कैसा ईमान था सहाबा का कि हिजरत करके मदीना चले गए। और अबू जहल ने देखा कि इतना खूबसूरत मकान है, इतना बड़ा मकान है, और इनकी जो पूरी फैमिली थी ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इनके बेटी, जो बीवी, इनका पूरा घराना ईमान लेके आया था। तो सारा के सारा घराना हिजरत करके चला गया, कोई एक भी उस घर में नहीं था। तो अबू जहल को घर इतना पसंद आया कि उस पर कब्जा जमा लिया और खुद आकर रहने लगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा दुश्मन, इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन, इनके घर पर कब्जा जमा के उसमें रहने लगा। अब इन्हें यहाँ मदीना में खबर हो गई कि अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि अबू जहल घर में आबाद हो गया, कब्जा जमा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के सामने तस्कीरा किया। बड़ी सुनने वाली बात है, सबक आमोज बात है, हमारी ज़िंदगी में लेने के लिए सबक है इसमें से। तो देखो, आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जब तस्कीरा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अब्दुल्ला बिन जहश, क्या आप नहीं चाहते कि आपको जन्नत का मकान मिल जाए? ये तो दुनिया का मकान है ना, क्या आप नहीं चाहते? अब इनका ईमान भी कैसा था ना। आज हमारे ईमानों को क्या हो गया है, कभी कोई तकलीफ़ आ जाती है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई सताता है, तो हम क्या सोचते हैं कि आगे कब होगा, कैसे होगा, अभी तो हम परेशान हैं। लेकिन देखो, ये कैसे सहाबी रसूल थे, और क्या ही पुख्ता ईमान, कैसा पक्का अल्लाह पे भरोसा, और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हर बात पर ईमान और भरोसा कैसा। देखो, आज हमें इस दौर में, इस ज़माने में हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए इन सितारों के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है। ये वाक़यात है, ये हमारे सीनों को झिंझोड़ते हैं, हमारे अंधेरे दिलों में नूर पैदा करते हैं, हमारे ईमान को ताकतवर और पक्का करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप नहीं चाहते आपका जन्नत में घर तैयार हो, आपका जन्नत में महल तैयार हो? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे जन्नत में घर मिल जाए। और उन्होंने उस घर की परवाह छोड़ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जहश, आपका जन्नत में घर तैयार हो भी गया। जन्नत में घर का मतलब क्या है? जन्नत में महल तामीर हो गया है आपके नाम का। सुभान अल्लाह, कैसे सहाबी रसूल है जो चल तो मदीना की बस्ती में थे, मदीना मुनव्वरा की, मक्का में घर छोड़ कर आए हैं वीरान, लेकिन इनका घर उस वक्त जब वो दुनिया में जिंदा थे, उनका घर जन्नत में तैयार हो चुका था। सुभान अल्लाह। ये हमें क्या सीखने मिलता है कि इन्होंने हिजरत की, अपने घर बार को छोड़ा, वीरान कर दिया ऐसे आलीशान मकान को अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। तो आज हमें हिजरत कैसे करनी है, हम कैसे अल्लाह के लिए हिजरत करें? हमारा भी तो जी चाहता है ना कि हम कुछ करें। तो हमें अपना घर तो नहीं छोड़ना, हमें कहीं और नहीं जाना, अपना माल, अपनी औलाद छोड़कर। हमें ये करना है कि गुनाहों के आदतों को छोड़कर नेकियों वाली जिंदगी में आ जाए, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के जो अल्लाह ने जिससे मना किया है उन चीज़ों को
को छोड़कर जन्नतों वाले रास्ते पर आ जाए, ये हमारी हिजरत है। और ये ऐसी हिजरत है जिस हिजरत के बदले में भी हमें जन्नत में घर मिलेंगे। इन्होंने अपना ये आबाद करते घर को वीरान कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, यहाँ तक कि ये भी गवारा किया कि उसमें अल्लाह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन उनके सामने आबाद रह गया, पर उन्होंने वापस जाने का कसद और इरादा नहीं किया, बल्कि जन्नत में घर गवारा कर लिया, कि जन्नत का घर पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि अपने दिलों में से भी ऐसी ख्वाहिशात को तोड़कर दिलों को वीरान कर दे और अल्लाह की याद से अपने दिलों को आबाद कर दे। जैसे इन्होंने अपने घर को छोड़ा, हम अपने दिलों में से हर उस बुत को तोड़ डालें जो हमें अल्लाह की नाफरमानी करने पर उभारते हैं, जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तोड़ने पर उभारते हैं। हर वो ख्वाहिशात, हर वो गुनाह, अगर किसी का गैर महरम से ताल्लुक है, कोई पर्दा नहीं करती, कोई किसी को झूठ बोलने की आदत है, हर इंसान अपना गुनाह खुद जानता है, किसको किस चीज की लत लगी हुई है। कोई फिल्में, मूवीज, ड्रामे देखता है, किसी को गाने सुनने की आदत है, किसी को झगड़े लड़ाई में पड़ा हुआ है। तो इससे तौबा करके अल्लाह के हुजूर अपनी इन सारी ख्वाहिशात को, बुरी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की तरफ हिजरत करे, अल्लाह के फरमा बरदारी की तरफ, नेकियों की तरफ हिजरत करे। अगर हम अपने दिलों को इस तरह से इन चीज़ों को उखाड़ फेंकेंगे, दिल को खाली कर देंगे अल्लाह की रजा के लिए, जैसे इन्होंने घर बार खाली कर दिए और यहाँ आकर आबाद हो गए, जन्नतों में घर बन गया इनका। सुभान अल्लाह। क्या ही किस्मत वाले सहाबी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से ये खुशखबरी इन्हें सुनने के लिए मिल रही है। ऐ काश हम भी उस दौर में होते और हम भी ऐसी खुशखबरियाँ सुनते। लेकिन आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, जिंदगी बाकी है, हम भी गुनाहों को छोड़कर जल्दी से हिजरत करें नेकियों की तरफ। नमाजों की पाबंदी अगर किसी से नहीं हो रही, आज इस महफिल में तौबा करे कि अल्लाह ताला हम भी हिजरत करते हैं नमाज पढ़ने की तरफ। अगर कोई फराइज पढ़ता है, सुन्नतें नहीं पढ़ता, तो सुन्नत पढ़ने का अहद करे। कोई सुन्नतें पढ़ रहा है, नवाफिल कभी छूट रहे तो नवाफिल पढ़ने का अहद करे। और कोई झूठ बोलता है, झूठ से छोड़ने का। कोई किस गुनाह में है, कोई किस गुनाह में है, कोई पर्दा करना चाहता है, आज हिजरत कर ले, अल्लाह ने मौका दिया है। देखो आज हम अगर दुनिया के फहश कपड़ों को छोड़ेंगे, जिस तरह फिटिंग में कपड़े पहनते हैं लोग, लेगिंस पहन के बाजारों में घूमते हैं, फिटिंग में कपड़े पहनते हैं, अगर आज हमने हिजरत कर ली इन कपड़ों से, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कपड़े पहन लिए, तो जन्नतों में हमारे मोती और सोने और हीरे से बने हुए कपड़े तैयार हो रहे होंगे। अगर आज हमने इरादा कर लिया कि हम हर वो हराम माल छोड़ देंगे, हमारी जन्नत में हलाल गिज़ाएं बन रही होंगी। आज हमने सोच लिया कि हम जेवर तो अगर है हमारे पास, लेकिन हम इसकी बेपर्दगी करके शादियों में, बड़े बड़े फंक्शंस में नुमाइश नहीं करेंगे। आज हम तौबा करते हैं कि हम मुकम्मल पर्दा करके घर के बाहर जाएंगे, हमारे जन्नत में ज़ेवरात तैयार हो रहे होंगे, हमारे घर भर रहे होंगे जन्नत में। इन सहाबी रसूल की वाक़ियात से हमें ये सीखने को मिला कि यहाँ घर वीरान किया, जन्नत में घर तैयार हुआ। आज हम अपने दिल में से हर वो ख्वाहिशात को निकाल देंगे, इंशाअल्लाह हमारे लिए भी जन्नतों में भी नेमतें मिलेंगी। और याद रखना कि जो तकवा इख्तियार करता है, जो गुनाहों को छोड़ता है, उसके लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी तय्यब मज़ेदार ज़िंदगी, जन्नत वाली ज़िंदगी अता फरमाते हैं। उनके गमों को दूर फरमा देते हैं, तकलीफ़ों को दूर फरमा देते हैं, टेंशनों को दूर फरमा देते हैं। तो आज हम तौबा करें, क्योंकि हर गुनाह की वजह से ना दुआएं कबूल होने की रुक जाती है। दुआ अगर कबूल नहीं होती, उसकी एक वजह यह है कि गुनाह नहीं छूटते। अगर हम गुनाह करना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल जल्दी से जल्दी कबूल कर लेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के मानने वाले बन जाए, अल्लाह हमारी मानने लगेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला को तो वादा है कि मैं हर इंसान की दुआ को खुद सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ, हत्ता कि इन्हें भी चाहिए कि ये भी मेरे हुक्मों पर चले। तो हमें क्या चाहिए, अल्लाह को नाराज ना करें। आज दुनिया में अगर हम लग कर अल्लाह को नाराज करेंगे ना, या तो अगर कोई लोग इबादतें करते हैं, लेकिन ये है कि दुनिया के सामने तो इबादत गुजार बनते हैं, तन्हाई में अल्लाह के सामने गुनाह करते, अल्लाह से हया नहीं करते। कोई लोग ऐसे होते कि नमाज पढ़ते हैं सबके सामने कि मैंने ये नमाज पढ़ लिया, रियाकारी करते हैं। कई लोग को जो जो नेकी करते हैं, कभी ये होता है कि रियाकारी मतलब
दिखावे के लिए, सदका दिखावे के लिए, खैरात दिखावे के लिए। नीयत ये होती है कि लोग मुझे बड़ा समझे, लोग मुझे मुत्तकी और नेक समझे। अंदर से हालत ये होती है कि अल्लाह के सामने उनके मामलात बिगड़े हुए होते हैं। तो मैंने जिस टॉपिक को लिखा था ग्रुप में कि एक कुआं है दोज़ख में जिसे गम का कुआं कहते हैं, अरबी में उसे जुब्बुल हुज़्न कहते हैं, गम का कुआं। वो 400 मरतबा जहन्नुम जिस कुएं से पनाह मांगती है। सोचिए वो कुआं कैसा होगा जिस कुएं से जहन्नुम इतनी दर्दनाक इबरतनाक आग से भरी हुई, बदबू से भरी हुई, धुएं से भरी हुई जहन्नुम दिन में 400 मरतबा उससे रोज पनाह मांगती है। वो कुएं में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कुएं के बारे में बताया और कहा कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि इस कुएं से पनाह मांगो, सहाबा ने जब इस कुएं के बारे में पूछा तो बताया गया कि इस कुएं में रियाकार, दिखावा करके करने वाले आबिद दाखिल होंगे। मतलब दिखावे के लिए जो इबादतें हम करते हैं, लोगों को के सामने अच्छा बनने के लिए अगर हम इबादत करते हैं तो ये कुआं उन इबादत गुजारों का इंतजार कर रहा है। तो अपनी इबादतों में इखलास पैदा करें, खालिस अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए। देखो ये सहाबी रसूल जिनका हमने अभी तज़किरा सुना, अरे पूरा के पूरा घर छोड़ दिए। आज हमें क्या करना है, अपने अंदर की चीज़ों को तोड़कर अपने अंदर हमें छोड़ना है हर बुरी आदतें, अल्लाह के लिए इबादत करना है, इखलास से अमल करना है। क्योंकि हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे ऐसे कुओं में जाना, जबकि कुरान में आता है कि जहन्नुमियों को जहन्नुम में, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जहन्नुम तो इंतजार करती है, तो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को आग के कुर्ते पहनाए जाएंगे, आग के। अल्लाह अकबर। अगर आज हमारे लिबास में एक मच्छर, एक चूंटी चली जाए या पहनने के बाद अगर कुछ कांटा चुभ जाए, हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं या उसे उल्टा करके कई बार देखते हैं, नजरें दौड़ाते हैं, कोई चूंटी तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं जो हमें काट ले। सोचो तो सही, या अगर रोटी पकाते हुए एक चिंगारी अगर हमारे ऊपर उड़ जाए आग की तो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ये आग के कुर्ते होंगे। रिवायतों में आता है कि वो गंधक गंधक का है, क्योंकि कुरान में उसको कतीरान बोल के कहा गया है। तो आग के कुर्ते मतलब गंधक, जिससे हम माचिस से, गंधक से, छोटी सी गंधक से माचिस की तीली जलाते हैं। सोचो ये गंधक का पूरा के पूरा कपड़ा सिलाया पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक तसव्वुर करो, अपने पर्दों को छोड़कर कपड़ों की नुमाइश अगर हम कर रहे हैं तो आज हम अल्लाह से तौबा करें। ऐसे कोई लिबास पहन रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज हो रहा है, आज हम तौबा करें। नमाज पढ़ते वक्त अगर पूरा सत्तर नहीं ढक रहा है, हाथ अगर खुले हैं, कई लोग ऐसी नमाजें पढ़ते हैं कि दुपट्टा इतना छोटा कि कोहनियों के आगे हाथ खुले होते हैं। वो ये औरतें ये सुन ले कि उनकी नमाज में सत्तर ही नहीं ढका तो नमाज कैसे कबूल होगी। कपड़े इतने छोटे पहने जाते हैं कि शलवार के इतने ऊपर या शलवारों को ऐसे जाली लगा देते हैं नीचे से कि वो पाइचे को जाली की वजह से, वो नेट की वजह से पैर खुले होते हैं, आर पार नजर आ रहा होता है। कैसी नमाजें कबूल होगी। तो सोचो ये गंधक के कपड़े उनके इंतजार में हैं। गंधक के कपड़े कोई कहाँ कहीं जगह बताया गया है कि तांबा जो है ना, तांबा, वो पिघलाए हुए कपड़े पहनाए जाएंगे। और आग की तो पूरी जहन्नुम है। तो सोचो ऊपर कई जगह ऐसा अजाब होगा कि खुजली के कपड़े पहनाए जाएंगे, पूरे जिस्म पर खुजाता फिरेगा इंसान, नोचता फिरेगा गोश्त, और उसके ऊपर वो गंधक या तांबे का कपड़ा पहनाया जाएगा, आग का कुर्ता। इंसान भागता दौड़ता फिरेगा। आज अगर हम अल्लाह से तौबा नहीं करें, आज अगर हम अल्लाह के पास तौबा नहीं करें तो हम मरकर मिट्टी में मिलना है। कब्र मुंह खोले खड़ी है, हर इंसान के लिए कब्र खड़ी है। आज हम तौबा करेंगे। ये छोटी सी महफिल है, कोई बड़ी नहीं होती, आधे घंटे की महफिल होती है हफ्ते में से एक बार, लेकिन तौफीक उन्हें होती है जिसे अल्लाह चुनता है। सोचो तो सही, इतने 24 घंटे हम गुजार देते हैं। अगर हम अपनी इस्लाह नहीं कर पाए, हम दूसरों पर उंगलियां उठाते कि वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन हमें अपनी इस्लाह करना जरूरी है। हम जितना अल्लाह से डरेंगे दुनिया के लोग हमसे डरेंगे, हम जितना अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ये दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करेंगे, हम जितना अल्लाह के हुक्मों की परवाह करेंगे ये दुनिया वाले हमारी परवाह करेंगे। होता ये है कि हम अल्लाह के हुक्मों को
तोड़ते हैं, ये दुनिया वाले मिल के हमें तोड़ते हैं। हम अल्लाह को नाराज करते हैं और नजरिया आता है कि दुनिया वाले हमसे कभी राजी नहीं होते। हम अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हैं, ये दुनिया वाले हमसे कभी मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के मुट्ठी में कायनात है, अल्लाह के चुटकी के अंदर लोगों के दिल है। तो आज हम अल्लाह से तौबा करें और इखलास वाली इबादत करें, ऐसे जुब्बुल हुस्न गम के कुएं से नजात मांगे जिससे खुद जहन्नुम 400 मरतबा नजात मांगती है। इखलास के साथ इबादत करें। सदका देते हो अपने नीयत को टटोलो, 100 बार अल्लाह के पास इरादा कर लो, अल्लाह खालिस तेरे लिए, अल्लाह खालिस तेरे लिए। ज़कात निकालते हो अल्लाह खालिस तेरे लिए। नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई सामने आ गया कि हम अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ये खालिस तेरे लिए पढ़ रही हूँ। पर्दा कर रहे हैं, चार में अगर वो हमें लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये औरत अच्छी पर्दा कर रही है, तो हम कहें कि अल्लाह ये खालिस तेरे लिए, लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, अल्लाह मेरी इबादतें, मेरी रियाजतें, मेरा जीना, मेरा मरना ये खालिस तेरे लिए। जब इसमें इखलास पैदा होगा ना, तो अल्लाह ताला आने वाले नस्लों की भी ईमान की हिफाजत करते हैं। आज अगर हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए तो फिर देखो जैसा उनका जन्नत में घर बन गया ना, वैसा इंशाअल्लाह हमारा भी बनेगा। लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानियां कर दी, तो हमने सुना है ना कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जैसी तस्बीह कर रहे थे, तो क्या किया था उन्होंने, मछली के पेट में तस्बीह की थी ना। अगर हम नाफरमानी करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से अगर किसी ऐसे हालात में फंस गए हैं कि वो मछली की तरह लग रहा है, ना इससे निकलने का रास्ता नजर आता है, ना इसमें से कहीं जाने का रास्ता नजर आता है, ना वो हालात बदल रहे हैं, मालूम होता है कि उस तरह बंद है मछली में हम, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम का हम कुरान में तस्करा सुनते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये हमें सबक मिलता है कि हालात की मछली का पेट है, किसी को कर्जदारी, किसी को तंगदस्ती, कभी किसी का कोई मसला अटका हुआ है, कई बड़ी उम्र की अगर कोई ख़वातीन है कि कोई निकाह करना चाहती है, किसी को औलाद का मसला हो रहा है, किसी ने किसी कारोबार में पैसे लगाए हुए वहाँ अटका हुआ है और वो महसूस कर रहा है कि मैं मछली के पेट की तरह ऐसे फंस गया हूँ, तो निकलने का रास्ता नजर नहीं आता, तो कुरान उसे दावत देता है कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो कि मछली के पेट से किस तरह निकाला गया। कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद है ही नहीं, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। इतने बड़े नबी यूनुस अलैहिस्सलाम दीन की दावत दे रहे थे और उसके बाद वो हिजरत कर रहे थे, तो मछली ने निगल लिया। तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम ये पुकार उठे, तो अगर हमारे भी हालात ऐसे हैं कि मछली के पेट की तरह हम फंस गए हैं, तो हमें ये दावत मिलती है कुरान से कि मेरे बंदे तुम भी इस्तिग़फ़ार करो, मेरी तस्बीह बयान करो, मेरी तौहीद बयान करो, ऐसे निकाल दूंगा जैसे कभी फंसे ही नहीं थे। जो भी अंधेरे हैं, ये तीनों अंधेरे क्या कई हजार अंधेरे हैं, मैं निकालने पे कादिर हूँ, मेरी तस्बीह करो। तो अल्लाह ताला की हमें तस्बीह करनी है, हर वो चीज़ जो हमें गुनाह से जोड़ती है। और जानते हैं हर गुनाह कब होता है, जब इंसान लंबी लंबी आरज़ूएं करता है, लंबी लंबी चीज़ें, जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें अता की है वो छोड़ के अगर हम उस पर शुक्र नहीं करेंगे तो इंसान गुनाह के ताबे हो जाता है। हज़रत अबू दरदा फरमाते थे, अल्लाह अकबर, हज़रत अबू दरदा फरमाते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, पुख्ता बड़े बड़े मकानात बनाते हो, आरज़ुएं बड़ी लंबी करते हो और मर बहुत जल्दी जाते हो। अल्लाह अकबर, ये क्या है, ये सहाबी रसूल फरमा रहे हैं कि ये क्या है, मकानात तो बड़े बड़े बनाते हो, आरज़ुएं तो लंबी लंबी करते हो और मर बहुत जल्दी जाते हो। मतलब क्या है कि चाहे जितने हम बड़े बड़े मकानात बना ले, एक दिन ज़मीन के अंदर दफन होना है। आज अगर हम अपने दिलों को गुनाहों से दूर करके हिजरत कर लेंगे, तो आज अगर हम अपनी जिंदगी से ये हिजरत कर लेंगे गुनाहों से नेकियों की तरफ, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना मकान छोड़ के चले
چلے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بسنے لگا، ان کا مکان جنت میں تعمیر ہو گیا۔ اگر ہم نے ایسی گناہوں سے کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کر لی تو قبر میں آرام سے رہنے کی وجہ بن جائے گی، ہماری قبر جگمگانے والی بن جائے گی، ہماری قبر میں بھی باغات لگ جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہم سچی دل سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ بڑی بڑی ملکائیں، بڑی بڑی شہزادیاں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، کئی رائل VIP زندگی گزارنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ قبریں ملیاں میٹ ہو گئی، راکھ ہو گئی، قبروں میں ہڈیاں جوڑ الگ ہو گئے، دانت الگ نکل پڑے ہیں، ہلڈیاں الگ نکل پڑی ہے، آنکھیں الگ نکل پڑی ہے۔ کہاں ہے وہ آنکھیں جس کو سرما لگا کر خوبصورتی سے سجایا جاتا تھا، جن کی نیند پوری ہونے کا نہ خوف ہونے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی جاتی تھی، جن کے آرام کی وجہ سے کہ سر کو ٹینشن نہ ہو، سر کو تکیے پہ رکھا جاتا تھا، آج وہ کھوپڑی بن کر قبروں میں سڑ رہے ہیں۔ تو اس کے پہلے یہ دن آئے ہم اپنے اللہ سے رابطہ کریں اور قرآن کا ماحول بنائے، گھر میں قرآن کو بہت پڑھنے والے بنے۔ قرآن جیسے ہم نے پچھلے مذاکرے میں سنا تھا نا، بیان میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کے گھر میں قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کے گھر میں حلقے لگاؤ، قرآن کا ماحول بناؤ، ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کے سناؤ، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بن جاؤ گھر میں بیٹھ کر، بچوں کو لے کے، بہنوں کو لے کے، جن کا نکاح نہیں ہوا وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے، جو نکاح ہو گیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، اگر شوہر نہیں بیٹھ رہے گھر میں کام میں تو خود بیٹھیں، اپنا قرآن سنائے، بچوں کو سنائے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسے قرآن بس گیا، ایسا نور آ گیا کہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے بن گئے۔ یہ قرآن ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، یہ قرآن ہے جو آخرت کو بدل دیتا ہے، یہ قرآن ہے جو قبر کے حالات کو آگ سے باغ بنا سکتا ہے، یہ قرآن ہے جو انسان جو اپنے مالک سے دور ہوا ہے وہ اس کو اللہ رب العزت سے دوستی کروا سکتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے جڑ جائیے، اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے، قرآن کا ماحول بنائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا واقعہ یاد کیجئے کہ حضرت خباب کس طرح سے انہیں قرآن سنا رہے تھے، جس کی گنگناہٹ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل بدلے، ہماری بھی توبہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، یہاں جڑنے کو قبول فرمائے۔ اور جو بہن جس نیت سے بیٹھی ہے نا، تو آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، یا غفور الرحیم، ہماری تمام کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم نے یہاں ہجرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا، یا اللہ تعالیٰ ہم بھی گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس ہجرت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ، توبۃ النصوح عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بنا دینا۔ یا الہ العالمین، ہمارے گھروں میں بھی ہدایت کی ہوا چلا دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے گھروں میں بھی قرآن کا ماحول بنا دے، قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، جتنی بہنیں یہاں جڑی ہے تماموں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو جس مسئلے کو لے کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان تماموں کے مسئلوں کو آسان فرما دے۔ جو بیمار ہے یا اللہ انہیں کامل درجے کی شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے نکاح ہے انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہے انہیں صحت اور عافیت والی عمر دراز بالخیر عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا الہ العالمین، یہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمیں جہنم کے اس غم کے کنویں سے ہماری حفاظت فرما، گندھک کے آگ کے کپڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت کے باغ عطا فرما، جنت کے باغات میں بیٹھ کر یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ مارے
مارے مارے بھٹک رہے ہوں گے، اس وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جام کوثر نصیب فرما، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما، قرآن سے دوستی عطا فرما، اور قبر میں جن لوگوں کے قرآن آنے والا ہے یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما کہ ہم قیامت تک قرآن کے ساتھ آرام سے اپنے قبر میں رہیں۔ یا الہ العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔